हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैड के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैड 2022 का सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the set says that Korkai is a serene village nestled in a small island separated from the mainland by a strait the world forgot to name. Its inhabitants are mostly fishermen, a few are cattle grazers too. A boat ride across the strait is the only mode to transport to the mainland. ठीक है। Budugu, the boatman, ferries people, cattle, and bicycles across the strait in his boat for a living. The remoteness and the lack of connection to the mainland has served him well. He has a family of 5. His 2 daughters are away studying in the city college and dream of corporate jobs in the cities. His ailing mother and wife completes his family. तो बेसिकली ये है कि मतलब भाई एक आइलैंड है, मेनलैंड से दूसरी तरफ से कटा हुआ है। बुडुगु जो है बीच में जो सी पड़ती है उसमें वो रो करता है और सामान या कैटल या बाइसिकल या आदमी लोग इधर उधर करता है, तो इससे उसकी लिविंग चलती है। ठीक है। Budugu sent his daughter to study in the city as there is only one school in Korkai run by an NGO. The NGO prepares the village kid for higher studies. For those who cannot go to cities, the NGO teaches them about the virtues of local way of life. तो NGO है वो पढ़ाता है हायर स्टडीज के लिए। Budugu is a member of the village panchayat that runs the village administration at Korkai. Hardly anyone remembers the local MLA or MP. Interestingly, the local MLA visited last week and informed the islanders of major changes planned for the region. Urgent construction of bridge connecting the island to the mainland and real estate development. She announced that the island will become a well-known ecotourism destination in the state. मतलब बेसिकली एमएलए आया था, ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन रन करती है, विलेज पंचायत का भी मेंबर है बुडुगु। एमएलए आए थे और उन्होंने बताया कि भाई आइलैंड को मेन लैंड से कनेक्ट करने के लिए हम एक ब्रिज बनाने वाले हैं ताकि इको टूरिज्म जो है वो स्टेट में बढ़े। शी स्ट्रेस्ड दैट द लोकल लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन द फॉर्च्यून्स एट द सी माइट एंजॉय सर्टेनिटी इन मिनिमम वेजेस मेटेड आउट बाय द इको रिजॉर्ट ओनर्स। मतलब जो रिजॉर्ट बनेगा यहाँ पे उसके ओनर्स जो है वो आपकी मिनिमम वेजेस में एक सर्टेनिटी देंगे आपको की लाइवलीहुड की। Nevertheless, some villagers fear that the bridge will irreversibly change their lives and livelihood. Irreversibly change हो जाएगी उनकी lives और livelihood, ये लगता है कुछ villagers को। Budugu fears that the proposed bridge will leave him jobless and is determined to do something about it. He wants to gather effective support in order to get the construction of the proposed bridge delayed. तो Budugu जो है उसको लगता है jobless हो जाऊंगा इसके बाद, इसलिए वो इस proposed bridge के construction को delay करवाना चाहता है। Which of the following will be the most feasible option for Budugu to gather effective support? ठीक है, इफेक्टिव सपोर्ट के लिए सबसे feasible ऑप्शन क्या होगा बुडुगु के लिए? Partner with the local NGO and campaign that the developments will ruin the local way of life. पार्टनर विद द लोकल एनजीओ के साथ पार्टनर कर ले और एक कैंपेन रन करे कि लोकल वे ऑफ लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पहली बात तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन रन करती है, एनजीओ के साथ मिलके आप एक कैंपेन चला भी सकते हो, बट इट इज दिस वेरी इफेक्टिव कि लोकल वे ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगा? किसी के थ्रू जो आप वो करते हो, वो बोल रहे हैं कि मिनिमम उस पे मिनिमम वेजेस पे आपको जो है इको रिजॉर्ट ऑनर जो है आपको कुछ ना कुछ जॉब देंगे। ठीक है, तो फिर भी इसको अभी रखते हैं, हम लोग देखते हैं। गेट अ रेजोल्यूशन पास बाय द पंचायत दैट ब्रिज विल रूइन द लोकल वे ऑफ लाइफ। भाई वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है विलेज पंचायत चलाती है, एमएलए और एमपी वहाँ पे विजिट भी नहीं करते, तो अगर वो रेजोल्यूशन पास करवा लेता है पंचायत से कि ब्रिज जो है वो लोकल वे ऑफ लाइफ खराब कर देगी, रूइन कर देगी, तो ये स्ट्रॉन्गर ऑप्शन है रादर देन ए, क्योंकि उतना इफेक्ट एनजीओ नहीं डालेगा जितना पंचायत से पास हुआ रिजोल्यूशन डाल सकता है, क्योंकि फिर सारे के सारे विलेजर्स जो होंगे पंचायत की बात को डिनाई नहीं कर पाएंगे एंड ही विल गेट सपोर्ट टू डिले दिस। सस्पेंड हिज बोथ सर्विसेज टिल द विलेजर्स स्टार्ट सपोर्टिंग हिज कॉज, ये सबसे बेकार ऑप्शन होगा, डेफिनेटली बी से तो बेटर नहीं है। इन्फॉर्म द एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स इन द नियर बाय सिटीज दैट द स्ट्रेट इज द होम टू रेयर फिश, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स। फिश, फ्रॉग्स और टर्टल्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही है उस ब्रिज के आने से, दिक्कत हो रही है लोकल लाइवलीहुड को। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। फॉर्म अ बोट रोवर्स एसोसिएशन एंड सिट ऑन अ हंगर स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट द प्रपोज्ड ब्रिज, ये कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन बट नॉट बेटर देन बी। बी इज द बेस्ट ऑप्शन, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।